Hello everybody. Via the Learning Education Center, which is a educational unit of Learning Educare Private Limited. Via this platform, the discussion here or the lecturate will be on the topic environment and ecology. अभी जो बताया जाएगा, जो टॉपिक बताया जाएगा वो बताया जाएगा एनवायरमेंट और इकोलॉजी के बारे में, किस तरीके का क्या पर्यावरणीय अध्ययन क्या है. What is the environment and what is the environmental and ecological effect? That is important because we will see in our nature. Nature में देख रहे हैं जिस तरीके से in nature these things, these happenings will go around us, will affect the humankind, the animals, floras, faunas, plant kingdom, animal kingdom, whatsoever, any kind of things, किसी भी चीजों को, सारे स्पीसीज को, all the species that is getting to be involved in all these things which we are going to discuss here, because all things comes in around somehow. That is why in environment and as ecology, which is also a part of the syllabus of universities, colleges and schools, a part of discussion, debates, presentations, or something new or innovative research is a part of what UPSC syllabi, either in mains examination answer writing, or either in state PCS or state PSC answer writing, और आइदर मे बी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, एक वैकल्पिक विषय के बारे में भी अगर इसमें चर्चा करें तो ये सारी चीजें हैं करने के लिए. तो अब इसमें क्या क्या डिस्कशन है, व्हाट इज द डिस्कशन विल बी ऑन द टॉपिक. That topic will be discussed with biodiversity conservation initially. So if you will see about the biodiversity, that what is basically the biodiversity is. Biodiversity का मतलब क्या है? Biodiversity means जैव विविधता, ऐसा डिफरेंस, इस तरीके की वैरायटी, a variety of what species, what kind of species? Biospecies, a kind of diversities that is governing with the bio, that is called biodiversity. जैव विविधता, ऐसी विविधता जो जैविकता को प्रमाणित करती है, that is verifying the nature of what species, living species, or some more flora fauna in terms of animal, in terms of human, whatsoever, that is called biodiversity. Because biodiversity is very important. Biodiversity ensures the food chain, the food web, क्योंकि एक दूसरे का आहार कोई ना कोई कर रहा है. कोई जैसे प्लांट है, प्लांट्स को खा रहे हैं सभी लोग, फिर उसके बाद कुछ और, फिर जो चीज डिकम्पोज देखिए हो जाता है उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो इस तरीके से एक चेन बनती है. तो दैट इज व्हाई दैट चेन इज गेटिंग टू बी इफेक्टेड, प्रभावित होती है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बायोडायवर्सिटी. बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कंजर्वेशन मींस टू सेव समथिंग, टू अपहोल्ड, टू पोजेस समथिंग. किसी भी चीज को पोजेस करना, अपहोल्ड करना और सेव करना, that is seems to be what? Biodiversity. That is called to be the conservation. That is why if it is seems via biodiversity, it is called a biodiversity conservation. So biodiversity conservation is a part of this study. Climate change, we are watching about the climate and weather conditions. The difference between weather and climate here is this. Weather is a meteorological change that will be comes in a day or a 2 or a week. दैट इज एक सप्ताह के अंदर, एक सप्ताह में कुछ दिनों में घटित होने वाला जो भौतिक चराचर जगत में भौतिक कुछ गतिविधियां हैं, ऐसी फिनोमिनल गतिविधियां हैं जो कि मेट्रोलॉजिकल हैं, जो कि मौसम संबंधी है, तो दैट इज कॉल्ड वेदर, उसे वेदर बोलते हैं. लेकिन क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट एक लंबे समय से चला आ रहा पैटर्न, अ पैटर्न व्हिच इज कमिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम इन सम सेट ऑफ टाइम दैट इज सीम्ड टू बी क्लाइमेट. जैसे जनवरी के टाइम पे ठंडा होता है भारत में, या इंडिया में देखा जाए कहीं और पे गर्म हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कहां पर के सन रेज अवेलेबल हो पा रही हैं, सूर्य की किरणें कहां पर कैसे हैं, आइदर डायरेक्टली स्लैंटेड और व्हाटसोएवर मोड. तो इसीलिए क्लाइमेट चेंज दैट इज गेटिंग टू व्हाट, दैट इज गेटिंग टू रिफ्लेक्ट द change which is occurring in the climate. That is also a part of this environment and ecology. Now pollution and sustainable development. What is pollution? Pollution means kuda, kachara and all these things. Yes, this pollution is done via some all activities
some activities that is governing in the ghats also, rivers also, river fronts also, बहुत सारी चीजें क्रियाएं की जाती हैं और फेंक दिया जाता है कूड़ा कचरा, बहुत बंच जमा हो जाता है साफ करने का। कुछ ऐसा मेजर होता भी है, कई बार नहीं भी होता, इतनी सारी गंदगी वहां दिखती है तो वो जमा हो जाती है। दैट विल बिकम अ हीप एंड और एक चट्टा लग जाता है और इस तरीके से जो है दैट विल कॉज पॉल्यूशन। और पॉल्यूशन तो आए दिन कहीं पर भी हो जाता है, कहीं इधर उधर, कहीं जहां पर अगर कूड़े का निस्तारण नहीं होगा, कूड़ा सॉल्व नहीं होगा, रिजॉल्व नहीं होगा, दैट मे बी डन बाय द मोस्टली लोकल गवर्नमेंट्स एंड दैट मे बी डन बाय स्टेट गवर्नमेंट्स और व्हाटसोएवर। अगर ऐसा नहीं होगा तो दैट विल कॉज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन विल आल्सो कॉज बाय द नॉन एनकरेजमेंट ऑफ व्हाट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज बेस्ड ऑन दिस पॉल्यूशन रिडक्शन। तो पॉल्यूशन प्रदूषण निवारण के इफेक्टिव मेजर्स धरातल पे जब तक नहीं चलते हैं, सिर्फ हवा हवाई रह जाते हैं और सिर्फ भाषणों तक संबंधित रह जाते हैं, तो भी कई बार क्या होता है, पॉल्यूशन को गति मिलती है और पॉल्यूशन हो जाता है। अगर वो पॉल्यूशन प्लास्टिक का होगा तो क्या होगा, प्लास्टिक का तो प्लास्टिक खाएगा, गाय है, भैंस है, जो चलने वाले जानवर हैं, वो कई बार सब प्लास्टिक वगैरह खा जाते हैं, कुछ और कर जाते हैं, है ना। कई बर्ड्स हैं वो मांझे में और इस तरीके से जो तार वगैरह हैं इनमें फंस जाती हैं और जो चीजें पड़ी होती है गंदगी उनमें फंस जाती है, तो इस तरीके से दैट विल हिट द बायोडाइवर्सिटी। दैट इज व्हाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट इज नाउ कॉल्ड टू बी एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हिंदी में समग्र विकास कहते हैं, संधारणीय विकास भी कहते हैं, सहित विकास भी कहते हैं, संग्रहित विकास भी कहते हैं और संवर्धी विकास भी कहते हैं। कहीं ना कहीं एक ऐसा डेवलपमेंट जो सर्वस्पर्शी है, यानी सर्वस्पर्शीय विकास भी कहते हैं, और ऐसा जो समग्र है, जो ऐसा जो भविष्य के चीजों को देख करके टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फ्यूचर एस्पेक्ट्स, जो वर्तमान में डेवलप किया जा रहा है, वो दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस तरीके से दैट विल ऑल कम्स अंडर द स्टडी ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट क्या है कि जितनी भी चीजें पर्यावरण में घटित हो रही है वो इन्वायरमेंट है ऐसे, और इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी में जिस भी तरीके के जैविक अजैविक आपस में जो इंटरेक्शन कर रहे हैं, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट इन द एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पोर्शन ऑफ दिस स्टडी वी आर जस्ट डिस्कसिंग। नाउ व्हाट इज इकोसिस्टम क्या होता है। अब इकोसिस्टम तो किसी का भी हो सकता है, एक वाटर का इकोसिस्टम हो सकता है तो वाटर साइकिल कहलाएगी, अगर 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 किसी और सॉइल का होगा तो सॉइल सिस्टम कहलाएगा। वही सॉइल में फर्टिलिटी होनी चाहिए, मृदा में जो है वो क्या होना चाहिए, उर्वरकता होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं वाटर जो है, पानी अंडरग्राउंड वाटर टेबल है, पानी पहले वाटर बॉडीज से क्या करता है, एवेपोरेट करता है, वाष्पीकरण होता है उसका, और फिर वो हवा में पहुंचता है, फिर बादल बनते हैं, नाउ इट फॉर्म्स अ क्लाउड, फिर कंडेंसेशन होता है जिसको हिंदी में संघनन कहते हैं, संघनन होता है, देन इट विल प्रेसिपिटेट, तब जाकर के वर्षण की गतिविधि होती है और वर्षा होती है, और तब जाकर के क्या होती है, बारिश होती है, और इस तरीके से ये चक्र चलता रहता है। और वो मेल्ट होकर के आया होता है कहां से, जो आइस बर्ग्स होते हैं, आइस कैप्स होती हैं, और इस तरीके से जो ग्लेशियर्स हैं वहां से पिघल करके नदियों में आया रहता है। तो इस तरीके से ये ऐसा इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम में बी ऑफ एनीथिंग। प्रोटेक्टेड एरियाज, व्हाट आर कॉल्ड प्रोटेक्टेड एरियाज, जहां पर किसी भी तरीके की इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एकाएक नहीं हो सकती, मानवीय गतिविधियां, ह्यूमन इंटरेक्शन इतना ज्यादा एकाएक हो भी सकता नहीं हो सकता है, तो इसीलिए रामसर साइट्स होती हैं, रामसर साइट जैसे वेटलैंड्स होती हैं, वेटलैंड मतलब दलदलीय भूमि, और वेटलैंड्स किस लिए होती है, वो दैट इज वर्किंग एज एन स्पंज एंड वाटर सोकिंग, पानी खींचने वाली भूमि होती है जो कि वाटर टेबल को बढ़ा रही होती है, तो ऐसी भूमि भी जरूरी है, हर जगह पर जमीन ऐसी जरूरी है, तो इसीलिए दैट इज रामसर साइट। देयर आर मेनी मोर रामसर साइट्स इन द कंट्रीज व्हिच आर साइटेड एंड येट टू बी साइट, और लगते रहते हैं, बढ़ती रहती है संख्या। नेशनल पार्क्स होते हैं, राष्ट्रीय पार्क है, और इंटरनेशनल कन्वेंशन, देयर आर जमावड़ा लोगों का इकट्ठा होना कॉन्फ्रेंस के रूप में बातें करने के लिए और कुछ सहमति बनाने के लिए, एग्रीमेंट बनाने के लिए कि पर्यावरण को कैसे सुधारेंगे, कैसे थामेंगे, कैसे बढ़ाएंगे, कैसे ज्यादा पेड़ लगाएंगे और कैसे पेड़ों को कम काटेंगे। अब कई बार क्या होता है, अगर अभी एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी की ही बात करें तो जैसे अभी फ्यू मंथ्स बैक अगर
एक अरावली पर्वत का लें कि इतना बड़ा जो अरावली पर्वत को डिमोलिशन करने का वो जो डिसीजन था गवर्नमेंट का, दैट सीम्स, या फिर अरावली पर्वत को जो डिमोलिशन किया जाना था, दैट सीम्स टू बी वेरी अननेचुरल। किसी भी तरीके से अगर फॉरेस्ट लैंड को हद से ज्यादा इंक्रोच कर दिया जाता है, चाहे वो आदिवासियों की जमीनें हो, चाहे वो वेटलैंड्स हो, या फिर चाहे वो किसी तरीके से बेनाम जमीनों पे अधिग्रहण हो, और इस तरीके से, और ऐसी जमीनें जहां पर एकदम से इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को या फिर किसी भी ऐसी एक्टिविटीज को सुपर जो वहां पे मोमेंटस एक्टिविटीज है उनको नहीं किया जा सकता, उससे रोक है, प्रोहिबिशन है, किया जाएगा तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट की शांति पर और इसके जो समन्वय है, जो डिग्निटी है, जो इसकी गरिमा है, इस पर बहुत प्रभाव पड़ता ही है, और दिस विल डिस्टर्ब द इकोलॉजी एज वेल। कहीं ना कहीं जो है इंटरनेशनल कन्वेंशन इसी के लिए होती है, जैसे अभी अरावली पर्वत के उतने पेड़ अगर काट दिए जाते तो कहां जाते लाखों पेड़, फिर कितनी बड़ी हीट वेव आती। ऑलरेडी इंडिया में इतनी बड़ी हीट वेव अभी चल रही है, अगर जंगल जगह जगह से कट जाएंगे तो कितनी बड़ी हीट वेव चलेगी, कितनी बड़ी कोल्ड वेव चलेगी, क्या ब्रीजिंग होगी, क्या हवा लैंड से सी की ओर और सी से लैंड की ओर आएगी। ये सब भौगोलिक परिवर्तन आ जाएगा सिर्फ पैसा कमाने की होड़ में, या फिर किसी भी तरीके से ऐसी होड़ जिसका सब्स्टिट्यूशन और हो भी सकता है, पैरेलल मैकेनिज्म अगर बन सकता है तो बन सकता है, लेकिन उसको न देख करके अगर ऐसे डायरेक्टली हिट कर दिया जाएगा एनवायरमेंट इकोलॉजी को तो कहीं ना कहीं तो प्रभाव देगा। ये इसका पढ़ने का बिंदु और उसका एप्लीकेशन और रियलाइजेशन वाला पार्ट भी है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, नाउ व्हाट इज प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, क्या होता है? अब जैसे अगर प्लास्टिक है, प्लास्टिक कोई खा जाए तो गलता तो नहीं, इट इज नॉन डिग्रेडेबल। इसको बोलते हैं नॉन डिग्रेडेबल, मतलब ये होता है कि जो गलता नहीं है, जो सड़ता नहीं है, एकदम से डिकम्पोज नहीं होता, जो खत्म नहीं होता, खंडित नहीं होता है पूर्णतः। तो इसीलिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को किस तरीके से गला के रिसाइकिल करके, अब इसमें अगर कोई चीज होती है तो इसीलिए कोई चीज आई दैट इज कॉल्ड सर्कुलर इकोनॉमी। अब एक सर्कुलर जो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है कि ऐसी चीजें जिनको रिसाइकिल किया जा सकता है, इस सर्किल में लिया जा सकता है, लूप में लिया जा सकता है, कि उनका यूज कम और उनका यूज जो है अगर हो तो वो पूरा फिर रिसाइकिल हो जाए, चीजें रीयूज हो जाए, और इसमें इस तरीके से रीयूज हो जाए, रिसाइकिल हो जाए, और इस तरीके से किया जा सके। और कहीं ना कहीं इफ यू विल सी द इकोलॉजिकल फंडामेंटल्स, तो environmental and ecology में we will discuss these terms and what ecology fundamental like study components of ecosystem, biotic and abiotic, जैविक और अजैविक। जो जिंदे हैं वो बायोटिक अबायोटिक विचार जिंदे नहीं है, और ऐसे बायोटिक अबायोटिक भी हैं, और जिसे बोलते हैं जीवित और अजैविक। और इस तरीके से इकोलॉजिकल niche are what, or we will say like this, accommodations of what, of the species। let us suppose क्या होता है, अगर देखा जाए तो अगर देखा जाए तो इन सीटू और एक्स सीटू रिजर्वेशन सेंटर्स भी होते हैं, मतलब एक ऐसे रहने के केंद्र जो ऑलरेडी, जिसमें जैसे जंगल है, जंगलों को में कोई नकलीपन नहीं है, वो जंगल है और वहां पर लोग रह रहे हैं, स्पीसीज रह रहे हैं, सारे जीव जंतु रह रहे हैं। लेकिन अगर उसी को जू बना दिया जाए तो दैट इज समथिंग लाइक इन सीटू एंड एक्स सीटू। और इसको देखेंगे तो इकोटोन्स क्या है और एनर्जी फ्लो क्या है, बिकॉज एज एन फूड चेन, फूड वेब और पिरामिड। फूड चेन मतलब जो खाना खा रहे, खाद्य श्रृंखला की जो श्रेणी है, चेन है वो। फूड वेब मतलब खाद्य श्रृंखला का जाल, और पिरामिड मतलब यही होता है कि पिरामिड किस तरीके से बन रहा है, दैट कॉन्स्टिट्यूट एनर्जी फ्लो। तो एनर्जी किस तरीके से नीचे की ऊपर और ऊपर के नीचे फ्लो करेगी, जो जिसको कंज्यूम कर रहा है एनर्जी ले रहा है 10%, फिर इस तरीके से चल रहा है। सो दैट विल कम्स अंडर दिस एनर्जी फ्लो, मतलब जो ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है एक जीव से दूसरे में, द flow and natural fluxing of what energy from one species to another, that is seems to be energy flow somehow। अब किसी तरीके से now it seems to be like biochemical cycle। अब biochemical cycle में under the role of what is the role of carbon, नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन है और सॉइल फिक्सेशन में जरूरी होता है, और इस तरीके से नाइट्रोजन को फिक्स होना, और नाइट्रोबैक्टर होता है, तो इस तरीके से एक बैक्टीरिया होता है, और इस तरीके से फास्फोरस क्या है,
साइकिल होती है। और फास्फोरस और नाइट्रोजन को सॉइल में डालने के लिए सॉइल क्या होता है, अगर सॉइल है तो अभी कुछ समय पहले सॉइल हेल्थ कार्ड आया था। अब सॉइल हेल्थ कार्ड की क्या सिचुएशन है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कैसे रेगुलेट हो रही है, ये देखने का विषय है इन द एनवायरमेंटल। और ये कहीं ना कहीं ऐसे राइटिंग का भी पार्ट है। बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी मतलब जैव विविधता क्या है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, अगर पर्यावरण में लगातार ह्रास आ रहा है, पेड़ कट रहे हैं, काटे जा रहे हैं, पहाड़ तोड़ने की कोशिश हो रही है, या ऐसा समझ लिया जाए कि ऐसा बहुत बड़ा प्राकृतिक अवांछनीय गतिविधियां अगर होने लगी हैं, और अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है, धार्मिक कर्म कांड करते तो हैं लेकिन ऐसे फेंक के चले आते हैं वहां पे नदी नालों में और सब चोक हो जाता है। अब ऐसी पूजा पद्धति, या फिर यूं कहें, अगर इस प्रकार से भी कहें, चीजें भले ही हो रही हो लेकिन अब वो चीज किसके लिए होती है, फॉर वेलफेयर ऑफ दिस। अगर वेलफेयर नहीं हो रहा, अगर सुख सुविधाएं, सुख संपन्नता अगर नहीं आ रही, घाटों में गंदगी हो रही है, रिवर बेड्स में गंदगी हो रही है, जगह जगह पर चीजें फैल जा रही है, तो ऐसे में क्या होगा, क्या ऐसे में वो आयोजन माना जाएगा कि सफल है? तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कहीं ना कहीं ये चीज भी सिखा देता है, और वो पढ़ते हैं एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी पे। प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, और प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क जैसे ये है कि भाई कौन से सुरक्षित क्षेत्र हैं, कौन से सुरक्षित स्थान है, कौन से सुरक्षित वो नेटवर्क है, तंत्र है, दे आर कॉल्ड टू बी एज प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, जिनमें एकाएक ह्यूमन का इंटरेक्शन इसलिए जरूरी नहीं क्योंकि वहां पर बहुत सारे क्योंकि बहुत सारे स्पीसीज के हैबिटेट है, अपने घर है, और वो उसको घर समझ के रहते हैं। तो फॉर दिस सेक प्रोटेक्शन एरिया हैज टू बी व्हाट, कंजर्व्ड। क्लाइमेटिक चेंज एंड ग्लोबल एफर्ट्स, व्हाट आर नाउ द क्लाइमेट चेंज, इतना है तो उसके लिए क्या ग्लोबल, पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व भर में, पूरे विश्व पटल पर किस प्रकार के परिवर्तन, किस प्रकार की गतिविधियां, किस प्रकार का सहयोग, किस प्रकार का सहयोगी मापदंड और मेजरमेंट सिद्ध हो रहा है, क्वांटिफाई हो रहा है, लग रहा है, इंप्लीमेंट हो रहा है, और धरातल पे उसके कुछ रिजल्ट आ रहे हैं। तो दैट विल ऑल कंसर्न एनवायरमेंट and what, ecology. And one more thing which is very important here is what, like if you will see here, biodiversity. In this biodiversity, define the level of biodiversity, species, genetic ecosystem, hotspot कौन, जैसे वेस्टर्न घाट्स है इंडिया में, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट्स है, केरला का वेस्टर्न घाट्स है, वो बिगेस्ट हॉटस्पॉट एरिया, वहां पर सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी है। और जैसे चेरापूंजी मौसम में सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो इसीलिए। एंड बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एफर्ट्स इन सीटू एक्सीटू क्या है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या है कि एनालाइज कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन, एयर, वाटर, नॉइज। बिकॉज पॉल्यूशन हवा से होगा तो हवा पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, इफ इट इज डन बाय वाटर इट इज कॉल्ड वाटर, और जल पॉल्यूशन, जल प्रदूषण है, इफ इट इज डन बाय नॉइज इट इज कॉल्ड ध्वनि प्रदूषण, और इट इज कॉल्ड एक्वास्टिक पॉल्यूशन और डेसिबल पॉल्यूशन, बिकॉज द यूनिट ऑफ नॉइज इज व्हाट, द यूनिट ऑफ साउंड इज डेसिबल। और एंट्रोफिकेशन क्या है, यूट्रोफिकेशन क्या है, what is eutrophication क्या है, और what is the flow of energy consumed by one species to another, ये चीज क्या है। और डिसर्टिफिकेशन मतलब अगर जंगल बदल जाएंगे, मरुस्थल में तो मरुस्थलीकरण क्या है, और मरुस्थल को अगर हरा भरा कर दिया जाएगा तो डिसर्टिफिकेशन। और डेजर्टिफिकेशन मतलब मरुस्थलीकरण करना, जंगल काट के मरुस्थल और डेजर्ट बना देना। अगर डेजर्ट में थोड़ा और पेड़ और ऐसी कुछ नई टेक्निक लगाई तो दैट्स कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। कैसा है क्लाइमेट चेंज, प्रोटेक्टेड एरिया है, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स, एलिफेंट रिजर्व्स, रामसर साइट्स एंड ऑल। क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल एफर्ट्स लाइक क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये सारे वो प्रोटोकॉल हैं जहां पर लोग जमा होते हैं, सारे विश्व के लीडर्स, विश्व के लोग आते हैं चिंताएं करने के लिए एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पर। कुछ निष्कर्ष निकलते हैं और वो निष्कर्ष अपने अपने देशों में लगते हैं। हाउएवर उन निष्कर्षों को प्रभावित बहुत सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज करते हैं, इंडस्ट्रियल प्लेयर्स करते हैं, कमर्शियल प्लेयर्स करते हैं, गतिविधियां करती हैं, और जो गवर्नेंस चला रहे हैं उसके विचार और ऑब्जेक्टिव करते हैं, कैसी मनसा लेके काम करते हैं वह भी करते हैं। कहीं ना कहीं पेरिस एग्रीमेंट है वह भी है, कॉप समिट है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसी है, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ इंडियन लेजिस्लेचर क्या है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम 1986, पर्यावरण को ही बचाने की बात करेगा, पर्यावरण के अंदर लोगों को, उसके स्पीसीज को, उनको कैसे रखा जाए कि बायोडायवर्सिटी अधिक से अधिक बनी बची रहे, उसके बारे में ही बोलेगा। तो उसके लिए भारत में विधान क्या है, भारत में क्या वैधानिक विधान है, व्हाट आर द इंडियन लेजिस्लेचर्स व्हिच आर देयर
एंड डेफिनेटली बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 है क्या, और उसके साथ साथ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, मतलब किस तरीके से पर्यावरण और वनों को कंजर्व संरक्षित रखा जाएगा, उसके लिए क्या अधिनियम है, ये भी देखने की बात है इसमें इंडियन लेजिस्लेचर में। नाउ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2026 में किस तरीके से उसके क्या क्या प्रोविजंस है, प्रोविजंस मतलब प्रावधान है। ऑब्वियस सी बात है, अगर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट क्या है तो प्लास्टिक को कम करने, उसके प्रयोग को कम करने के लिए ही होगा, उसमें किसी तरीके से रिसाइक्लिसिटी लाने के लिए होगा, तो उसके लिए सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट भी लग सकता है ना। हालांकि वैसे तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह चलते हैं, आउटकम आने चाहिए, आउटकम होंगे भी, लेकिन आउटकम होते भी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इतने सारे प्रोजेक्ट्स और इतने ज्यादा फंड रिलीज होने के बाद कहीं ना कहीं ये जरूर समझा जा सकता है कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में एक प्रभाव पड़ेगा, एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नदी के घाट साफ होंगे, नहाने वाले घाट साफ होंगे, रिवर बैंक्स अच्छे होंगे, फॉरेस्ट एरियाज क्लियर होंगे, वहां जंगलों में आग नहीं लगेगी, फॉरेस्ट एरियाज को काटा नहीं जाएगा, सो दैट द फ्लोरा एंड फौना दैट इज नॉट गेटिंग टू बी डिस्टर्ब, बायोडाइवर्सिटी बनी बची रहेगी। इसके साथ साथ जो रिन्यूएबल एनर्जी है, nowadays one thing which is very important which is called renewable energy। renewable energy बहुत सारी important, मतलब ऐसी ऊर्जा जो कि सनलाइट से, सूर्य से, विंड हवा से, पवन ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, और कहीं ना कहीं जो है जियोथर्मल भूगर्भीय ऊर्जा, और इसके भूगर्भ मतलब धरती के अंदर जो गर्मी है, मेंटल और कोर, जैसे ही क्रस्ट से अंदर जाते हैं तो गर्मी है, तो उस गर्मी को यूज करके कैसे उसको जो है वाटर को स्टीम बना के कुछ और इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करते हैं, ये सब कुछ। तो इस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी में सारी की सारी चीजें एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही बदलते हैं और फिर उसके बाद प्रयोग में लेते हैं, क्योंकि आजकल ऑटोमेशन का युग है। नाउअडेज द एरा इज ऑफ, नाउअडेज द मॉडर्नाइजेशन बिलोंग्स टू व्हाट, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में मशीनों से काम होता है, अधिकतर मशीनों से काम होता है, तो दे नीड सप्लाई टू ऑपरेट और दे नीड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट। तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट ऑफ हीट वेव्स, अब आजकल इतनी हीट वेव्स भारत में आ रही हैं, तो ऐसे में जो है जंगलों को काट डालना ये एक बहुत बड़ा नकारात्मक डिसीजन हो तो है, ये तो कंफर्म है ही है। इसके साथ साथ ऐसा विचार करना भी अपने आप में एक अवांछनीय कृत्य है और कहीं ना कहीं एक एनवायरमेंट को और पर्यावरण और इकोलॉजी को धोखा देने जैसी बात है। तो ऐसा ये बिल्कुल ही क्लियर है कि इसलिए एनवायरमेंट और इकोलॉजी को अगर बचाना है तो बचाना सिर्फ एक ही हेतु आशय से और उद्देश्य से है, और वह है पेड़ लगाएं और पेड़ों को संदर्भ रखें और जिस तरीके से प्राकृतिक चीजें मिल रही है उनको कुछ ना कुछ मेजर तक तो बचा के ही रखें, सो दैट कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। ये सिर्फ बातों में ही ना हो बल्कि ये धरातल पे भी उतरे। However, we just discussed most of the topics about environment and ecology, and we just discussed about these topics via Learning Education Center, via the platform of this Learning Education। I am पुष्पेंद्र सिंह खड़ाय, मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह खड़ाय, जिसने आपको जो है ये सारे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, आप लोगों को इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के बारे में अभी इतनी चर्चा करी। इसके आगे की जो चर्चा है, फर्दर द डिस्कशन विल गोज ऑन द टॉपिक एज वी मूव ऑन इन दिस सब्जेक्ट और द एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज।